Anybody explain construction of this tapered shedding mechanism, which I have explained in the last class yesterday. I have, for easy understanding and to easily remember the things, I have divided the whole mechanism in 3 parts. Middle part, which consists of hill frames and passes of war. Lower part, which consists of tappets, anti-friction valve, treadle levers. And the third part is upper part, consisting of top reversing roller. There are 2 top reversing rollers of different diameters. One is of smaller diameter and another is of larger diameter. And both are mounted on a shaft which is known as top reversing roller shaft. And the hill frames, we have shown 2 hill frames in this diagram. We can go more than 2 hill frames within the capacity of tappet up to 8 or 10 hill frames. But for simplification, we have taken a very simple design which requires only 2 hill frames, and that may be like plain view. So 2 hill frames are connected at the top. Individual hill frames are connected at the top by top reversing rollers. Front hill frame is connected with smaller diameter roller with the help of leather strap L, and back hill frame is connected to top reversing roller, which is larger in diameter, indicated by M. That is very important. In the diagram you can see, and you have to consider this thing. This front hill frame is connected with inside roller, that is of smaller diameter, top reversing roller. And this is larger size top reversing roller, which is indicated by P. This back hill frame is connected to this. So please remember this thing. Notice this very well, that each hill frame should be connected with top roller. Effective top rollers we have to mention clearly in the diagram. Front hill frame is connected with smaller diameter roller, and back hill frame is connected with larger diameter top reversing roller. Like microphone unmute. Please keep muted yourself. Are you able to notice who is unmuted? Yeah, can you ask him or her? And please note down the names also, Parth, so you at the end of the class ask them to talk to me. Because these small things are disturbing the class and breaking the flow of the class. And that is really feels very irritating. Always in each class, sometimes someone is doing that, sometimes some other guy is doing that. And that is really irritating, because the students of college, if they cannot in this age group, if they cannot follow these things, that is really unbelievable. Keep muted because it disturbs whole class. If you have to ask any question or you want to answer any question, then only unmute yourself. ऑनलाइन क्लासेस बहुत नया कंसेप्ट नहीं है, काफी टाइम से आप ऑनलाइन क्लासेस. दिस पार्ट who is doing this? किसका अनम्यूट है? Who is S? Whenever I'm sharing the screen, I cannot see all the students on the screen.
and I'm not able to find out who is doing this thing. So Parth and one more student can keep observing all these things also. So, okay. So is it clear how the heel frames are connected with top reversing roller? Is it clear? They are upper part of the heel frames are connected with top reversing rollers, respective top reversing rollers, with the help of straps or leather straps, which are indicated by L and M in the diagram. This is leather strap, which is connecting this front heel frame with the smaller diameter top reversing roller. And this leather strap at this, which is indicated by M, is connecting the upper part of the heel frame with the larger diameter top reversing roller. Is it clear to everyone? Now here the question is, जो कि मैं कल आपको explain भी कर चुका हूँ, still I want to know, आपको समझ में आया नहीं आया, why the front heel frame is connected with smaller diameter roller and back heel frame is connected with larger diameter roller? Is there some specific reason? और या किसी को भी किसी से connect कर सकते हैं? Any student? Can anybody answer? Think about it. Question is, हमने जो लेदर स्ट्रैप को टॉप रिवर्सिंग रोलर्स को जो कनेक्ट किया, एक को स्मॉलर डायमीटर से किया है और एक को लार्जर डायमीटर टॉप रिवर्सिंग रोलर से किया है. Is there some specific reason? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Any student? Can you tell me the reason? या किसी को समझ में नहीं आया तो ये भी बोले कि समझ में नहीं आया है. So हम टाइम वेस्ट नहीं करें. And I can repeat the things. Not only one time, 2 times, 3 times. I can repeat the things. Can you ask me to repeat the things? या मौन में रहना है? Yes, sir. Repeat it again. Yeah, that is fine. So that we can save the time. If you couldn't understand, you can ask not only one time. You can ask 2 times, 3 times. But let it clear in your mind that everything should be clear to you. And if it is not clear, you can ask again and again. We are not in a hurry. We are going with a good speed, and we will be able to cover our syllabus within the time frame, within the time limit. So don't worry about that. But whatever we are studying, जो भी हम पढ़ रहे हैं, decide that should be clear. If you are attending the class, if you are giving your valuable time, then it should be clear to you. And if you are very regular in the class, then it is your right to clear everything. If you are not regular, you are doing once in a while, you are just visiting the classes as a guest, then it will be difficult to make you understand or make you clear everything. क्योंकि कंटिन्यूटी अगर नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है और बेसिक कंसेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो फिर समझाना मुश्किल होता है. So here the reason, the answer is hidden here. Like here we are indicating weft insertion, and weft is inserted with the help of shuttle. So the warp shade which is open here, the shade height here, shade height कितना होना चाहिए यहाँ पर? Shade height कितना होना चाहिए जहाँ पर शटल पास हो रही है? डिप्लोमा स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है, शेड हाइट कितना होना चाहिए? मैं मेजरमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, जस्ट आइडिया. शटल के हाइट से ज्यादा. यस, शटल के हाइट से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा क्लियरेंस चाहिए ताकि शटल और वार्प थ्रेड्स के बीच में रबिंग नहीं हो, फ्रिक्शन नहीं हो, टच नहीं करें, ताकि डैमेज नहीं हो वार्प थ्रेड्स को. तो
दैट इज ऑप्टिमम क्लियरेंस शुड बी देयर, तो शटल हाइट से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। टू गेट दिस हाइट एट दिस पॉइंट, यहाँ पे सपोज आपको h हाइट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू एज्यूम दैट वी नीड शेड हाइट इक्वल टू h here. To get this height h here, हिल फ्रेम नंबर 1 को कितना लिफ्ट और लोअर होना पड़ेगा और हिल नंबर 2 को कितना लिफ्ट होना पड़ेगा, हिल नंबर 1 को कितना लिफ्ट होना पड़ेगा और हिल नंबर 2 को कितना लिफ्ट होना पड़ेगा। अगर ये एंड हिल नंबर से पास 1 से पास हो रहा है तो उसको ये h हाइट यहाँ लाने के लिए कितना लिफ्ट होना पड़ेगा और बैक को कितना लिफ्ट होना पड़ेगा, दोनों को इक्वल अमाउंट से लिफ्ट होना पड़ेगा या दोनों में डिफरेंस होगा, टू गेट द सेम शेड हाइट एट द वीविंग एरिया। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? क्वेश्चन रिपीट करना है या समझ में आया? रिपीट करना है। यस, टू गेट अ पर्टिकुलर शेड हाइट हियर, जहां शटल पास हो रही है, इसको हम विविंग एरिया बोलते हैं, उस विविंग एरिया के वहां पर जितना शेड का हाइट होना चाहिए, मैं उसको एज्यूम कर रहा हूं h, सपोज इट इज h mm, h फॉर हाइट। तो ये हाइट यहाँ अचीव करने के लिए अगर ये थ्रेड हिल नंबर 1 से पास हो रहा है तो हिल नंबर 1 को कितना लिफ्ट होना पड़ेगा, और अगर ये थ्रेड हिल नंबर 1 से नहीं पास हो रहा, 2 से पास हो रहा है, भाई दोनों केस एज्यूम करें आप, तो अगर 2 से पास हो रहा है तो 2 को कितना लिफ्ट होना पड़ेगा, वहां पर हाइट हमें h चाहिए, तो 1 और 2 को सेम हाइट सेम डिस्टेंस से लिफ्ट होना पड़ेगा या किसी को कम और किसी को ज्यादा लिफ्ट होना पड़ेगा। अभी क्लियर है क्वेश्चन? यस सर, मतलब आफ्टर दिस हिल एज पास हो रहा है उसको ऊपर उठना पड़ेगा और जिसमें नहीं हो रहा है वो उससे कम रहेगा। नहीं, थोड़ा सा और क्लियर करो इसको। ये एंड में दो सिचुएशन अज्यूम कर रहा हूं, इस एंड को हम लिफ्ट कर रहे हैं h1 की हेल्प से, तो h1 को कितना लिफ्ट होना पड़ेगा, और अगर वो एंड बाय द वे h1 से पास नहीं किया, हमने h2 से पास किया है, दूसरा केस ले रहा हूं मैं, तो उस केस में h2 को कितना लिफ्ट होना पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन ये, मतलब सेम शेड हाइट h लाने के लिए h1, ये हिल नंबर 1 और हिल नंबर 2, सपोज हिल नंबर 1 को h1 से लिफ्ट करना पड़ता है और हिल नंबर 2 को h2 हाइट से लिफ्ट करना है, तो h1 और h2 इक्वल होगा या h1 कम होगा या h2 कम होगा या इक्वल होगा? h1 विल बी इक्वल टू h2 और h1 विल बी हायर देन h2 और h2 विल बी हायर देन h1, इन तीनों में से क्या होगा? सर अगर h1 में पास हो रहा है तो h1 इज ग्रेटर देन h2 होगा, अगर h2 से हो just answer should be h1 will be equal to h2 और h1 should be lesser than h2 और h2 should be lesser than h1। तीन चीजें हो सकती है ना, या तो h1 h2 बराबर हो सकते हैं, या h1 कम हो सकता है, या h2 कम हो सकता है। आपको शायद क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो। देखिए यहाँ पर सपोज ये हिल फ्रेम नंबर इससे पास हो रहा है, तो इस हिल फ्रेम को अगर आप सेंटर से देखें तो इसको इतना लिफ्ट होना पड़ रहा है, और इसी सेंटर से देखें तो इसको और ज्यादा लिफ्ट होना पड़ रहा है। जितना हम बैक में जाते हैं हिल फ्रेम को सेम शेड हाइट लाने के लिए ज्यादा मूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी यहाँ से डिस्टेंस बढ़ रही है। यहाँ से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी उतना ही हिल फ्रेम को स्लाइटली डिस्टेंस के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसको मूवमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। हाउएवर वी आर गेटिंग सेम हाइट हियर। अगर h आपको यहाँ पर चाहिए और ये थ्रेड अगर आपने h1 से पास किया है तो h1 को कम लिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये इसके नियरर है, और h2 को ज्यादा होना पड़ेगा। अगर थर्ड नंबर शाफ्ट है h3 तो सेम शेड हाइट उस थ्रेड की लाने के लिए उसको और ज्यादा मूव करना पड़ेगा। यानी कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जितना हम पीछे की तरफ जाएंगे, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इस पॉइंट से, उतना ही हिल फ्रेम को ज्यादा ऊपर होना पड़ेगा, ज्यादा लिफ्ट होना पड़ेगा, तब आपको वहां पर h हाइट मिलेगी। अगर आपने इन दोनों को इक्वली लिफ्ट किया तो यहाँ पर शेड हाइट में डिफरेंस आएगा। दैट
इज द रीजन। और इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्रंट हिल को कम मूवमेंट देते हैं कि कम हिल फ्रेम वन, जो फ्रंट हिल फ्रेम है उसको सबसे कम मूवमेंट करना पड़ता है, और जो सबसे बैक हिल्ड है उसे सबसे ज्यादा मूव करना पड़ता है। तो जिसको कम मूव करना है उसको हम स्मॉलर डायमीटर से कनेक्ट कर रहे हैं, और जिसको ज्यादा मूव करना है हाइट में, लिफ्ट करने में, उसको हम बड़े प्रोफाइल से ले रहे हैं। और इन दोनों के डायमीटर में प्रोपोर्शन इतना ही होगा जितना कि हमें यहाँ पर हाइट सेम मिल जाए। शेड हाइट विल बी सेम, either it is lifted by H1 or it is lifted by H2 or H3, H4, किसी भी हिल से वो लिफ्ट हो रहा है, H should be same. So to get equal H, as we are going farther from weaving area, we have to increase the lifting or the height of the hill frame. जो लिफ्टिंग है हिल फ्रेम की, उसको हमें उस डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा जितना हम बैक में जाएंगे। And that's why back hill frames are connected with larger profile top reversing roller, whereas front hill frame is connected with smaller diameter top reversing roller. Now it is clear? Yes, sir. And the same concept you can apply here also. अब देखिए बैक हिल फ्रेम और फ्रंट हिल फ्रेम कौन कौन से ट्रेडल से कनेक्टेड है। बैक हिल फ्रेम कौन से ट्रेडल से कनेक्ट, फ्रंट हिल फ्रेम कौन से ट्रेडल से कनेक्टेड है? फ्रंट हिल फ्रेम हिल नंबर 1 से कनेक्टेड है और बैक हिल फ्रेम हिल नंबर 2 से कनेक्टेड है। फ्रंट हिल फ्रेम यानी कि हिल नंबर 1 किससे, कौन से ट्रेडल से कनेक्टेड है? ट्रेडल पूछ रहा हूँ, ट्रेडल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पे। डी से सर, फ्रंट हिल फ्रेम डी से कनेक्टेड है और बैक हिल फ्रेम ई से कनेक्टेड है। Yes, front hill frame is connected with treadle D, treadle which is indicated by letter D, and back hill frame is connected with treadle which is indicated by E, right? E. Yes, D and E. तो जो D से कनेक्टेड यानी कि फ्रंट हिल फ्रेम D से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ देखें ट्रेडल D को मूवमेंट किससे मिल रहा है? ट्रेडल D के ऊपर ये एंटी फ्रिक्शन बाउल लगा हुआ है जिसको हमने R से इंडिकेट कर रखा है। गेटिंग दिस? R इज माउंटेड ऑन ट्रेडल D, और इस एंटी फ्रिक्शन बाउल R को मूवमेंट किससे मिल रहा है? इस एंटी फ्रिक्शन बाउल को। ये कौन से टैपेट के कांटेक्ट में है? A और B? टैपेट A से कनेक्टेड है। इट मींस A का जो प्रोफाइल है that will be smaller as compared to B. Same as top reversing roller. Smaller diameter, larger diameter. Similarly here, there is a difference in the profile. There is a difference in the profile. ये जो इसका जो प्रोफाइल है A का, वो कम होगा as compared to B. तो ये इसको जितना मूव कर रहे हैं उससे ज्यादा मूव हम बैक हिल फ्रेम वाले ट्रेडल को करेंगे। जितना इसको हम प्रेस कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रेस ये होना चाहिए, तभी इसको मूवमेंट ज्यादा मिलेगा। अब लिफ्ट एंड लोअरिंग मूवमेंट, तो बैक हिल फ्रेम का मूवमेंट जो है लिफ्टिंग एंड लोअरिंग, जितना हाइट वो ऊपर उठ रहा है या नीचे जा रहा है वो फ्रंट के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए, एंड दैट कैन बी कंट्रोल्ड एट द टॉप बाय द टॉप रिवर्सिंग रोलर का डायमीटर चेंज करके, डायमीटर में डिफरेंस करके, और नीचे की तरफ जो करना है लोअरिंग मूवमेंट को जो डिफरेंस लाना है फ्रंट टू बैक हिल में, वो हम ला रहे हैं टेपेट के प्रोफाइल में चेंज करके, टेपेट का जो मैक्सिमम डायमीटर है उसको चेंज करके। इसलिए जो बैक हिल फ्रेम से कनेक्टेड है, यानी कि बैक हिल फ्रेम से कनेक्टेड कौन सा टेपेट है? बी, तो बी का प्रोफाइल बड़ा होगा, जो टेपेट बी है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू ए। दैट इज द पॉइंट, एंड दैट इज वेरी सटल पॉइंट। ये सबसे बारीक पॉइंट है इस पूरे मैकेनिज्म का, that I have tried to make very, very clear to you. Still, if you have confusion, you can ask. Otherwise, we can move further. सर यहाँ पे एंटी फ्रिक्शनल बाउल का क्या काम? एंटी फ्रिक्शन बाउल के थ्रू ही हम ट्रेडल को प्रेस कर रहे हैं। डायरेक्ट ट्रेडल उसके कांटेक्ट में नहीं है, ट्रेडल के ऊपर एंटी फ्रिक्शन बाउल लगी हुई है। तो टैपेट जो है हमेशा एंटी फ्रिक्शन बाउल के कांटेक्ट में रहता है, तो टैपेट जिसको प्रेस कर रहा है वो एंटी फ्रिक्शन बाउल को, क्योंकि एंटी फ्रिक्शन बाउल ट्रेडल पर माउंटेड है,
इसलिए ट्रेडल को मूवमेंट मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच का हो गया, टैपेट और ट्रेडल के बीच में। डायरेक्टली टैपेट इज नॉट प्रेसिंग ट्रेडल लीवर्स, sorry, tappets are not pressing treadle levers. Treadles are pressing anti-friction ball, and because anti-friction ball is fixed on treadles, that's why treadles are also pressed. So tappets are pressing anti-friction balls, and because anti-friction balls are pressed down, your treadles will get downward movement. And if which treadle is getting downward movement, that heel frame will get downward movement. वो हिल फ्रेम नीचे की तरफ जाएगी, और जब ये हिल फ्रेम नीचे की तरफ जाएगी तो क्या होगा, ये जो लेदर स्ट्रैप है ये अनवाइंड होगा, और ये लेदर स्ट्रैप अनवाइंड होगा तो ये दूसरा वाला लेदर स्ट्रैप वो क्या होगा, वाइंड होगा, और ये वाइंड होगा तो ये हिल फ्रेम फर्स्ट अगर नीचे जा रही है तो जो बैक हिल फ्रेम है वो ऊपर जाएगी, वो लिफ्ट होगी। और जब ये ट्रेडल प्रेस होगा सेकंड पिक के ऊपर, जब ये ट्रेडल प्रेस होगा तो ये हिल फ्रेम नीचे जाएगी, बैक हिल फ्रेम, तो यहां से ये अनवाइंड होगा, लेदर स्ट्रैप टॉप रिवर्सिंग रोलर से अनवाइंड होगा, तो ये वाला वाइंड होगा। जब ये अनवाइंड होगा तो ये ऑटोमेटिक उस पर वाइंड होगा, और ये वाइंड होगा तो ये इस हिल फ्रेम को ऊपर लेके जाएगा। तो जो डाउनवर्ड मूवमेंट है हिल फ्रेम को, दैट इज इम्पार्टेड पॉजिटिवली बाय टैपेट्स, बट जो अपवर्ड मूवमेंट है हिल फ्रेम्स को वो टैपेट से नहीं मिल रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ टॉप रिवर्सिंग रोलर मिल रहा है। एंड दैट्स वाई हम इसको नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव शेडिंग का मतलब होता है कि एक मूवमेंट पॉजिटिवली मिलता है जिसके लिए हम टैपेट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मोमेंट के लिए हम टैपेट्स यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो मोमेंट मिल रहा है डाउनवर्ड किससे मिल रहा है, टैपेट से। लेकिन अपवर्ड मूवमेंट जो हो रहा है हिल फ्रेम्स का, हिल फ्रेम्स जो लोअर हो रही है वो ट्रेडल की वजह से हो रही है, यानी कि टैपेट की वजह से हो रही है, लेकिन हिल फ्रेम जो लिफ्ट हो रही है वो टैपेट की वजह से नहीं हो रही है, वो टॉप रिवर्सिंग रोलर के ऊपर लेदर स्ट्रैप वाइंड और अनवाइंड हो रहा है इसलिए हो रही है। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि एक मूवमेंट हम पॉजिटिवली कंट्रोल कर रहे हैं टैपेट के थ्रू, लेकिन अपर मूवमेंट हम उसके थ्रू कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक टॉप रिवर्सिंग रोलर की वजह से हो रहा है, लेदर स्ट्रैप के वाइंड और अनवाइंड होने की वजह से। दैट्स व्हाई दिस मैकेनिज्म इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म। I think it is clear. So I have taken construction as well as mechanism both, construction as well as working, but in a proper way I will repeat it. So you can go, एक बार आपके लिए वापस रिवीजन हो जाएगा पूरा कंस्ट्रक्शन पार्ट का। डायग्राम आप लोग ध्यान में रखें, डायग्राम इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू इन द स्क्रीन, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड डायग्राम। Just if we have missed some points, so I will read it one by one all the points. The figure, जो फिगर हमने अभी डिस्कस किया, shows a negative tappet shedding mechanism. ये जो फिगर है क्या शो कर रहा है, नेगेटिव टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म। इन दिस अ पेयर ऑफ टैपेट्स ए एंड बी, आपको याद है दो टैपेट्स हैं, एक पेयर है टैपेट्स का ए एंड बी, एंड दिस इज फिक्स्ड टू द बॉटम शाफ्ट, जो कि बॉटम शाफ्ट पर फिक्स्ड है, जिसको हमने सी से इंडिकेट किया, एट 180 डिग्री टू ईच अदर। गेटिंग द पॉइंट? डायग्राम में जाए वापस, देखो ये जब इसका स्मॉलर प्रोफाइल इसी कॉन्टेक्ट में है, तब ये इसका लार्जर प्रोफाइल कॉन्टेक्ट में है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस टैपेट का जब लार्जर प्रोफाइल इसकी कॉन्टेक्ट में है तो ये स्मॉलर प्रोफाइल कॉन्टेक्ट में नहीं है, उस समय इसका स्मॉलर प्रोफाइल कॉन्टेक्ट में है और लार्जर दूर है, यानी कि ये 180 डिग्री पर लगे हुए हैं। आप देखेंगे इसका लार्जर प्रोफाइल यहाँ है तो इसका लार्जर प्रोफाइल यहाँ है, यानी कि दे आर माउंटेड एट 180 डिग्री। दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर। Bottom shaft C at 180 degree to each other. Two treadle levers D and E are connected to the loom and fulcrumed at F. दोनों levers जो है fulcrumed होते हैं F पर और ये loom frame से connected होते हैं. That is first part of construction. The second point is the two treadles or treadle levers have teeth to carry the lamb rods. इसका जो front part है वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे थोड़े टीथ बने हुए होते हैं टू कैरी द लैम्ब रोड। लैम्ब रोड जो है उसमें आके फिक्स हो सकती हैं। लैम्ब रोड का जो हुक्स टाइप शेप है वो इसके टीथ में आके उसकी जो नॉच बनी हुई इसमें आके एंगेज हो जाएगा। लैम्ब रोड्स आर इंडिकेटेड बाय G and H रिस्पेक्टिवली। टू हील शाफ्ट्स J and K आर कनेक्टेड टू द लैम्ब रोड्स, और लैम्ब रोड से कनेक्टेड क्या है, दो हील शाफ्ट, एक लैम्ब रोड J से एक फ्रंट हिल फ्रेम और K से बैक हिल फ्रेम।
सो और हिल फ्रेम का लोअर पार्ट कनेक्टेड है लैम्ब रोड से, और लैम्ब रोड कनेक्टेड है ट्रेडल लीवर से। ट्रेडल लीवर का फ्रंट पार्ट है जो कि नॉच शेप में है, टीथ बने हुए हैं, उसके अंदर आकर के उसका हुक शेप आकर के उससे कनेक्ट हो जाता है लैम्ब रोड का। टॉप रोलर रिवर्सिंग शाफ्ट क्यू, जो कि क्यू से हमने इंडिकेट कर रखा टॉप में, कैरी 2 रोलर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। ये हम कंस्ट्रक्शन पार्ट ले रहे हैं तो हर पार्ट के बारे में बता रहे हैं इसके अंदर। अगेन डायग्राम इसलिए लिया था कि आपको क्लियर हो जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है। एनी क्वेश्चन? जो अभी एक्सप्लेन किया। The roller of smaller diameter is connected to leather strap L to which the front heel shaft is connected. मैंने ये आपको क्लियर किया था, स्मॉलर डायमीटर से फ्रंट heel shaft. The roller P of larger diameter is connected to the leather strap M to which the back heel shaft K is connected. जस्ट हम ये बता रहे हैं कि किसका किससे कनेक्शन है, that is construction part. The tappet A and B touch the anti-friction ball, या remains in contact with the anti-friction ball R and S respectively. A R के कॉन्टैक्ट में है और B S के कॉन्टैक्ट में है। The heel shafts have heeled eyes T and U. Heel shaft के अंदर हमने 2 heeled eye दिखाई हुई है, T और U से इंडिकेट किया हुआ, through which the warp threads pass है, उससे warp threads पास हो रहे हैं। X is the warp sheet and Y the cloth. इससे हमने पूरा कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन किया in a systematic manner. Then again diagram just to remind you, and then you can see the working. The last part of the diagram, working is when the bottom shaft rotates or revolves in the clockwise direction. अब आप यहाँ पे देखें डायग्राम में कि जब बॉटम शाफ्ट रिवॉल्व होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बॉटम शाफ्ट रिवॉल्व होगी तो क्या होगा? The tappets are also rotated. टैपेट क्योंकि बॉटम शाफ्ट पे माउंटेड है तो वो भी रोटेट होंगे, ठीक है। The tappet will press the anti-friction ball and the treadle. और जब उसका लार्जर प्रोफाइल, जिस टैपेट का लार्जर प्रोफाइल, एक का लार्जर प्रोफाइल कांटेक्ट में आएगा एंटी फ्रिक्शन बॉल के, तो वो उस एंटी फ्रिक्शन बॉल को प्रेस करेगा, और जिस एंटी फ्रिक्शन बॉल को वो प्रेस करेगा वो ट्रेडल, जिस ट्रेडल पर माउंटेड है वो भी प्रेस होगा, यानी कि डाउनवर्ड मूव करेगा। द मोशन इज, और ये मोशन ट्रांसफर होगा जब ट्रेडल्स को डाउनवर्ड मूवमेंट मिल गया है, टैपेट ने एंटी फ्रिक्शन बॉल को प्रेस किया, एंटी फ्रिक्शन बॉल जिस ट्रेडल पर माउंटेड है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और ये जब डाउनवर्ड मूव करेगा यानी कि इसका जो डाउनवर्ड मोशन है ट्रेडल का, दैट इज ट्रांसफर टू द लैम्ब रोड, और वो ट्रांसफर हो जाएगा लैम्ब रोड से, क्योंकि लैम्ब रोड ट्रेडल के फ्रंट पार्ट में फिक्स है, कनेक्टेड है। फ्रॉम लैम्ब रोड, और आगे कहाँ ट्रांसफर होगा? फ्रॉम लैम्ब रोड टू हिल शाफ्ट, क्योंकि लैम्ब रोड का जो अपर पार्ट है वो हिल शाफ्ट से कनेक्टेड है, तो ये मोशन पहले ट्रांसमिट होगा लैम्ब रोड को, लैम्ब रोड से ट्रांसमिट होगा हिल फ्रेम को, और जिस हिल फ्रेम को होगा उसके बाद उसी के लेदर स्ट्रैप को ट्रांसफर होगा। सो वन हिल शाफ्ट इज लोवर्ड एंड इट फॉर्म्स द बॉटम लेयर ऑफ द सेट, और ये जो हिल शाफ्ट जिसको मोशन ट्रांसमिट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, वो लोअर डायरेक्शन में मूव करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, और बॉटम लेयर बन जाएगी शेड की। वो वार्प थ्रेड्स नीचे की तरफ आएंगे बॉटम लेयर में, एंड बॉटम लेयर विल बी फॉर्म्ड। नाउ द सेकंड थिंग, द अदर हिल शाफ्ट, अब सपोज फ्रंट हिल फ्रेम लोअर हो गई है, तो अब दूसरी कौन सी है? बैक हिल फ्रेम। इन दिस केस द अदर हिल शाफ्ट इज रेज्ड अप, और दूसरी हिल शाफ्ट क्या हो? अगर ये लोअर गई है तो दूसरी हिल शाफ्ट लिफ्ट होगी बाय द रोलर रिवर्सिंग मोशन। वो लिफ्ट टैपेट की वजह से नहीं हो रही है, वो टॉप रोलर रिवर्सिंग की वजह से हो रही है। इट फॉर्म्स द टॉप लेयर ऑफ शेड, और वो जो हिल शाफ्ट में जो वार्प थ्रेड्स हैं वो टॉप लेयर बनाएंगे, यानी कि शेड फॉर्मेशन होगा। जो टॉप रिवर्सिंग की वजह से जो हिल शाफ्ट लिफ्ट हो रही है वो बनाएगी टॉप लेयर, और जो टैपेट की वजह से, ट्रेडल की वजह से लोअर हो रही है वो बनाएगी लोअर लेयर और बॉटम लेयर, और बॉटम लेयर और टॉप लेयर में अगर वार्प थ्रेड्स डिवाइड हो गए तो इन दिस वे शेड फॉर्मेशन विल बी देयर। सो फॉर वन रोटेशन ऑफ बॉटम शाफ्ट 2 शेड्स आर फॉर्म्ड। ये एक पर हुआ, एक ट्रेडल को नीचे किया तो दूसरा हिल फ्रेम अप हो गया, एक शेड बन गया। अगर उसी ये आधे रिवॉल्यूशन होगा, और आधा रिवॉल्यूशन में नेक्स्ट जस्ट इसका अपोजिट होगा। सो फॉर वन रोटेशन ऑफ बॉटम शाफ्ट 2 शेड्स आर फॉर्म्ड, फॉर द नेक्स्ट शेड द अदर सेट ऑफ बाउल्स एंड ट्रेडल वर्क्स। जो ट्रेडल और बाउल अभी वर्क कर रहे थे वो अभी अगले में काम नहीं करेंगे, अगले में दूसरे वाले काम करेंगे। And that's all. Thank you. We have less than 1 minute.
So we will take your questions if there is any question in the next class. Thank you so much.